Hi all, this video is for standard 6 science chapter 5. We have completed 4, 3, 2, 1 these all chapters. Now it is chapter 5, separation of substances. So in science, before this we have completed our chapters sorting materials into group. This chapter is also related to the same separation of substances. The exact meaning of what? That we are going to separate the 2 or 3 things at a time, and accordingly their size and shape we are going to have separation with them. So there are many instances where we notice a substance being separated from a mixture of material. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer. While preparing tea, grain is separated from stalks. While harvesting milk, curd is churned to separate the butter. A mixture is made of 2 or more substances. A mixture is made when 2 or more substances mix in such a way that their individual properties are retained. The different substances present in a mixture are called its compound or constituent. अब देखो, साइंस के लैंग्वेज में हमको ये समझना होगा कि सेपरेशन मीन्स क्या. जैसे मिल्क और कर्ड इज चर्ड टू सेपरेट द बटर. अब जैसे आप क्या होता है, मिल्क से कर्ड बन जाता है, मिल्क से हम लोग कर्ड बनाते हैं, और मिल्क से डायरेक्टली हम लोग बटर बना लेते हैं, और कर्ड से भी हम लोग बटर बना लेते हैं. ए मिक्सचर इज मेड ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस. ए मिक्सचर इज मेड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स इन सच ए वे दैट देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज आर रिटेन्ड. अब इस तरीके से हम लोग करते हैं तो उनका जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होता है वो रिटेन्ड हो रहता है, यानी कि उनका जो ओरिजिनलिटी होती है वो मेंटेन रहती है. नाउ प्योर सब्सटेंसेस. सो 2 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, वन इज प्योर एंड अनदर इज इम्प्योर. सो वी आर गोइंग टू लर्न नाउ प्योर सब्सटेंसेस. इन साइंटिफिक सेंस, देखो साइंटिफिकली हम चीज़ों को समझते हैं. इन साइंटिफिक चेन, a pure substance is a substance which is made up of only one kind of particles. Elements and compounds are pure substances. यानी कोई भी चीज़ अगर किसी एक पार्टिकल से बना होता है तो उसको हम लोग प्योर बोलते हैं. यानी कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड यानी कोई भी मैटर अगर किसी एक पार्टिकल से बना होता है तो उसको हम लोग प्योर बोलते हैं. मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स विच आर इनविजिबल to the naked eye. Atoms combine to form molecules. A molecule can be made of the same atom and also of different atoms. When 2 atoms of the same type combine, they form a molecule of an element. For example, oxygen is an element. One molecule of oxygen is made up of 2 atoms of oxygen. Elements are pure substances and cannot be broken down by any chemical means. When 2 atoms of different kind combined in a fixed ratio, they form a molecule of a compound. ठीक है. When 2, आप सबको एटम और मॉलिक्यूल का मैंने बताया हुआ है. When 2 atoms of different kind, यानी जब 2 अलग अलग टाइप के एटम्स आपस में फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो वो लोग क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं और कंपाउंड बनाते हैं. अब इम्प्योर सब्सटेंसेस किसे कहते हैं? An impure substance is a mixture of 2 or more substances. A mixture is formed by mixing substances together. The substances in a mixture can be present in any amount. A mixture can usually be separated into 2 or its original compound by mechanical or physical means. Mixtures are either homogeneous or heterogeneous. अब अगर आप किसी चीज़ के मिक्सचर्स को बनाते हो तो उसमें 2 टाइप के होते हैं. एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस. अब होमोजीनियस क्या होता है? Are those that are well mixed and their constituents distributed uniformly, so they appear the same throughout. अब जैसे शक्कर है और वाटर में आप बिल्कुल उसको सॉल्युबल कर देते हो तो क्या होता है, होमोजीनियस हो जाता है, बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स हो जाता है. और हेट्रो में क्या होता है, आर दोज दैट डू नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, सो दे डू नॉट अपियर टू बी सेम थ्रू आउट. जैसे अब सैंड है, उसको वाटर में आप मिक्स करोगे तो क्या होगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी डिजॉल्व कंप्लीटली, सो वी कैन से हेट्रोजीनियस, वो आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे. तो देखो इस तरीके से एक चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर आप ये समझ सकते हो कि
वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हम सब्सटेंस को अलग क्यों करते हैं। पहला पॉइंट है कि सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। अब राइस है, उसमें से अगर हम स्टोन को अलग नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्टोन इज टू बी वेरी हार्डर, और राइस पकने के बाद हमारे मुंह में पत्थर चले जाएंगे। पर्पज ऑफ विच क्यों, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। डिफरेंट होते हैं ना तो इसे अलग करते हैं, पर यूजफुल कंपोनेंट, स्टोन भी एक कंपोनेंट यूजफुल है और राइस भी है। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, ठीक है। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को चर्निंग करते हैं उसको, यानी बिल्कुल वो मसते हैं उसको, तो उसमें से क्या निकलता है, बटर। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स बाहर निकालते हैं। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट। वी यूज बोथ द कंपोनेंट। नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन मिक्सचर। अब देखो इसको हम लोग करते हैं कि इसमें कैसा है कि नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इन मिक्सचर। अब इस तरीके की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, तो सबसे पहला है टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स, यानी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। कंपोनेंट मतलब मैटर, सब्सटेंस। सॉल्ट इज रिमूव फ्रॉम सी वाटर, सॉल्ट को क्या करते हैं हम लोग, सी वाटर से बाहर निकालते हैं, टू मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब जो सी वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट मिक्स होते हैं, तो हम लोग सॉल्ट को बाहर निकालते हैं, तो उससे क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है। तो वाटर इज हार्मफुल टू हेल्थ, सी वाटर क्या होता है, हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। टू रिमूव द अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स, जिस चीज़ का जरूरत नहीं है वो भी उसमें मिक्स होता है, तो उस चीज़ को निकालने के लिए क्या होता है, वी रिक्वायर्ड सेपरेशन। समटाइम्स स्मॉल स्टोन्स आर प्रेजेंट इन द pulses and rice which can be harmful if not removed before cooking. Similarly, we find suspended particles of clay or sand are present in clear water which must be removed as they can be harmful. अब जैसे खाना बना रहे हो उसके अंदर राइस है, हार्मफुल होता है। अगर राइस में स्टोन है, आप खाना बना रहे हो, दाल है उसमें पत्थर पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, खाने के टाइम हमारे दांत के नीचे पड़ सकता है, ठीक है। तो फूड में क्या होता है, वी आर ईटिंग राइस एंड पल्सेस, और उसमें अगर स्टोन मिक्स होगा तो दिस इज हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस, अगर मान लो कि कोई सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, उसकी प्योरिटी हमको बनानी है, वी वांट ए प्योर सैंपल, तो उसमें जो चीज़ इम्प्योर होता है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। जैसे प्योर सब्सटेंस आर नीडेड फॉर ए वैरायटी और पर्पजेज, फॉर एग्जाम्पल प्योर गोल्ड इज नीडेड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। सिमिलरली प्योर कॉपर इज नीडेड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। अब देखो, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट, क्रूड पेट्रोलियम, आपने सुना होगा नाम क्रूड पेट्रोलियम का, कि सो मेनी प्लेसेस आर देयर इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड जहाँ से कि क्रूड ऑयल निकलता है, ठीक है। अब वो क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है कि इट इज़ टू बी रिफाइंड विद द वेरियस प्रोसेसेस, देन वी आर गेटिंग पेट्रोल। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पेट्रोल निकलता है। तो जो क्रूड पेट्रोलियम है, व्हेन माइंड फ्रॉम द अर्थ, इज ए थिक foil smelling liquid which cannot be put to any use. However, if its various components are separated, then they can be put to a variety of uses. For example, petrol is used for running cars, kerosene oil for lighting and cooking, diesel for running heavy trucks and buses. तो जो क्रूड ऑयल होता है उसको भी हम लोग प्रोसेसेस करते हैं, तो प्रोसेसेस करने से क्या होता है, वी आर गेटिंग पेट्रोल एंड केरोसिन एंड अदर थिंग्स। तो सेपरेशन इज वेरी मस्ट रिक्वायर्ड। मेथड ऑफ सेपरेशन क्या क्या होते हैं वो हम लोग बात देखते हैं। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, अब देखो सॉलिड और सॉलिड है, दो चीज़ मिक्स है, तो दिस इज़ वेरी इजीली कि हम उसको अलग कर सकते हैं। तो क्या क्या मेथड है उसके लिए, तो सबसे पहला है हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग में क्या होता है, हैंड पिकिंग मीन्स टू टेक आउट बाय हैंड, हाथ से हैंड पिकिंग मतलब क्या, हाथ से निकालो। द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग यूज टू सेपरेट those mixtures where one of the component is in a small quantity and it can be picked up easily by hand. The method of hand picking is usually used to separate undesirable substances such as small pieces of stone from wheat, rice and pulses. The food grains containing a small pieces of stones are taken in a flat container. The pieces of stone are picked up from the grains by hand one by one and throw away. Ultimately, all the stone pieces are removed and only food grains are left behind. तो क्या होता है जब खाना बनाते हैं आप, इफ़ यू सी इन योर किचन दैट योर मदर यूज टू डू दिस हैंड पिकिंग प्रोसेस,
थाली में लेके किसी चीज़ को व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग, जैसे गेहूँ है तो गेहूँ में पत्थर लगे हुए हैं, तो यू कैन सेपरेट द स्टोन फ्रॉम द दैट। अब थ्रेसिंग एक मेथड्स है, this is generally it is happening at the villages or in city area also. Now small plants has to be run. Cereals like wheat and rice are source of food for us. After harvesting these food crops, the grains need to be separated from the rest of the plant. This is done by the process of threshing. The process of separating the grains from the rest of the plant is called threshing. It is done in the following ways. अब ये किस किस तरीके से किया जाता है वो देखते हैं. In manual threshing, the farmer hold a pile of crops in his hand and hit it against a rock or any hard surface. During this process, the grains separate from the plant. अब देखो ये प्रोसेस है, आप फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हो. This is a very simple. It is happening in across the country or so many places, because this is being done manually और इट इज़ वेरी ईजी. थ्रेसिंग कैन ऑल्सो बी डन बाई मशीन ऑल्सो, मशीन से भी करते हैं. दिस मशीन इज यूज बाई थ्रेसिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्स. अगर जो बहुत ज़्यादा फसल होता है तो इट इज़ बीइंग यूज बाई द मशीन. अब एक सीविंग प्रोसेस है. ये सारे प्रोसेस हमको जानने हैं और समझने हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. इट इज़ द मेथड यूज टू सेपरेट कंपाउंड ऑफ ए मिक्सचर. सेपरेट कंपाउंड के अगर मिक्सचर्स हैं which are of different size, अलग अलग साइज को होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अनडिजायरेबल मटेरियल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन्स बाय यूजिंग ए सीवी मेथड. अब देखो इस मेथड्स के अंदर क्या होता है, द फाइन पार्टिकल्स पास थ्रू द सीवी वाइल बिगर पार्टिकल रिमेन ऑन द सीवी. यानी इसके अंदर क्या होता है, एक नेट होता है और अगर नेट की साइज छोटी है तो छोटे छोटे पार्टिकल उससे पास कर जाते हैं और बड़े वाले रह जाते हैं. ए सिमिलर प्रोसेस इज इम्प्लॉयड व्हेन व्हीट फ्लोर इज पास थ्रू द सीवी सो एज टू रिमूव द chaff. The size of the whole of the CV depend upon the size of the particle which are to be removed. अब देखो एक winnowing methods है. This method of separating component of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter component of a mixture by wind or by blowing air. आपने देखा होगा एग्रीकल्चर्स में, when you go to the गाँव में, विलेज में जब जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, 2-3 लेडीज़ खेतों के अंदर जब गेहूँ की फसल होती है तो दे आर टेकिंग ग्रेन्स इन देयर, दे हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ, उसमें हस्क होते हैं बहुत सारे. तो हस्क क्या होता है, दे आर वेरी लाइटर. तो वो जैसे ही उसको जहाँ से एयर आता है उसके सामने रखते हैं तो हस्क क्या होता है, बिकॉज ऑफ द लाइटर इट गोज अवे एंड इट फेल डाउन सम अदर प्लेस. और जो गेहूँ है उसका वजन होता है, इसलिए इट इज गेटिंग ऑन ए सेम प्लेस. तो द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड. द सीड्स ऑफ ग्रेन्स गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ए हीप नियर the platform of winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle. तो इतने सारे मेथड्स हैं. अब इसमें देखो सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड वाटर. अब ये भी मेथड्स होता है. यानी इस चैप्टर के अंदर हमको मेनली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेपरेशन, दैट हाउ वी हैव टू सेपरेट सॉलिड लिक्विड. ठीक है, तो इन अनदर वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स. इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं. चलो, थैंक्स.